Today we are going to study about cell organelles. The membrane-bound structure present in the cytoplasm are called cell organelles. Mitochondria, chloroplast, nucleus, endoplasmic reticulum. These structures which are not bounded by membranes are called cell inclusions, ribosome और centriole. तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है उसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, और कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है मगर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो उसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स, जैसे राइबोसोम या सेंट्रियोल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि नाम ही है, इंडो प्लाज्मिक, प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम मीन्स अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा के अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कंसिस्ट ऑफ एन इरेगुलर नेटवर्क ऑफ चैनल्स विच आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन होता है, एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। They are seen with the help of electron microscope only. If ribosomes are seen attached to their surface, then they are called rough endoplasmic reticulum, in short RER. If ribosomes are not present on endoplasmic reticulum, they are called smooth endoplasmic reticulum, SER. So you can see in this diagram, two types of endoplasmic reticulum can be seen: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. In smooth endoplasmic reticulum, you can see there are no ribosomes. In rough endoplasmic reticulum, you can see ribosomes are attached. Functions of endoplasmic reticulum. Ribosomes present are the site of protein synthesis. इसका मतलब कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच्ड है वो क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है। इट हेल्प्स इन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। इट एक्ट्स एज स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बहुत सिंपल सा टर्म है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं यानी कि लिपिड और प्रोटीन्स, तो उसको बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं लिपिड और प्रोटीन, वो कहाँ बनती हैं? SER में। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पॉर्टेंट ऑफ cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Next, Golgi apparatus discovered by Camillo Golgi. ये क्या है? ये भी membrane bound structure है और इसके जो tubules हैं उनको हम cisternae कहते हैं. They are usually seen aggregated towards the nucleus. In plants, they occur as unorganized and unconnected channels like a structure called dictyosomes. You can see here Golgi apparatus. These are the cisterns. Next, function of Golgi bodies: helps in the synthesis of some polysaccharides from simple sugar, helps in formation of glycoprotein. It is involved in transformation. Primary lysosomes are formed from Golgi bodies by budding. They are responsible for secretion and transport in the cell. So main important बात क्या है, Golgi body क्या काम करता है? ये सिंथेसिस करता है कुछ सिंपल शुगर का और ये ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है। लाइसोसोम्स जो बनते हैं वो गोल्जी बॉडी से बनते हैं और जो गोल्जी बॉडी है वो सिक्रेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये लाइसोसोम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Lysosomes, they are small sized enzyme containing vesicles which are bounded by single membrane.
तो लाइसोसोम क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल्स होते हैं एक्चुअली, उसके अंदर भरे होते हैं digestive enzymes. During the disturbance in cellular metabolism, for example when the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. Therefore lysosomes are also called suicide bag of the cell. Enzyme present in lysosomes are made by RER. They also destroy the foreign materials which enter the cell. तो कहने का मतलब है कि लाइसोसोम जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो अगर उस सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, डैमेज हो जाता है अगर वो सेल, तो लाइसोसोम अपने आप बर्स्ट हो जाता है और उसके एंजाइम अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। फंक्शन: they help in the digestion of food within the cell. They protect the body from bacteria and other harmful organisms. They help in the removal of old worn out cell organelles. Mitochondria: this is also a very important part of the cell. They are small bodies that occur in large numbers. A mitochondria consists of an outer membrane and inner membrane. It means mitochondria के अंदर दो membrane होते हैं, inner membrane folded inwards to form the cristae. ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है जो इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी के अंदर ही यहाँ पर जो है वो एटीपी बनता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना खुद का डीएनए और खुद का अपना राइबोसोम्स भी होता है। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज दस रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दे आर देयरफॉर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी बनाता है। कैसे बनाता है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लास्टिड्स कहाँ होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। It is of two types, chromoplast and leucoplast. It is a laminated structure which is bounded by double membrane. तो प्लास्टिड्स के भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। स्पेशल प्लास्टिड जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज important for photosynthesis. Leucoplast stores starch, oil, protein granules. Plastids show two distinct regions, grana and stroma. Plastids have their own DNA and ribosomes. इसके पहले भी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। उसी तरह से प्लास्टिड के अंदर भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। This is the structure of chloroplast. Function of plastid: chloroplast is called kitchen of the cell as food is synthesized by the process of photosynthesis. तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लांट के लिए फूड बनता है, और किस प्रोसेस से बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Chromoplast gives various colors to different parts of the plant, petals or flower. Leucoplast stores food. वैक्यूल क्या है? वैक्यूल आर सैक लाइक स्ट्रक्चर meant फॉर स्टोरेज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। तो आपने देखा है कि प्लांट सेल में वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। और प्लांट सेल में वो बड़ा होने का क्या वजह है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड मटेरियल जो हैं वो स्टोर होते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप that contains amino acids, water, protein, organic acid, sugar, etc. This cell sap provide turgidity and rigidity to the cell. You can see here the vacuole. ठीक है, okay.